Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan हरे कृष्णा। तो जैसे हम जानते हैं, हम श्रीमद् भागवतम से पठन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 9वां अध्याय और 26वां श्लोक, इसके ऊपर हम आज कुछ बातें शेयर करेंगे और आपस में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम शुरू करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो श्लोक इस प्रकार से है। पुरुष स्वभाव विहितान, पुरुष स्वभाव विहितान, यथा वर्णम यथाश्रमम आश्रमम, यथा वर्णम यथाश्रमम, वैराग्य राग उपाधिभ्यम, वैराग्यो राग्यपादीयम्, अम्नाता उभया लक्षणम। अम्नाता भयवला लक्षणान्। Hare Krishna. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. At Maharaj Yudhishthir's inquiry, Bhishma Dev first defined all the classifications of castes and order of life in terms of individual qualifications. Then he systematically, in twofold divisions, described counteraction by detachment and interaction by attachment. So, the purport by His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, the conception of 4 castes and 4 orders of life as planned by the Lord Himself, Bhagavad Gita 4.13, is to accelerate transcendental qualities of the individual person so that he may gradually realize his spiritual identity and thus act accordingly to get free from material bondage or conditioned life. In almost all the Puranas, the subject matter is described in the same spirit, and so also in Mahabharata. It is more elaborately described by Bhishma Dev in the Shanti Parva beginning from the 60th chapter. The Varnashram Dharma is prescribed for the civilized human being just to train him to successfully terminate human life. Self-realization is distinguished from the life of lower animals engaged in eating, sleeping, fearing, and mating. Bhishmadev advised for all human beings 9 qualifications: not to become angry, not to lie, to equally distribute wealth, to forgive, to beget children only by one's legitimate wife, to be pure in mind and hygienic in body, not to inimical towards anyone, to be simple, and to support servants or subordinates. One cannot be called a civilized person without acquiring the above mentioned preliminary qualities. Besides these, the Brahmanas, the intelligent man, the administrative man, the mercantile community, and the laborer class must acquire special qualities in terms of occupational duties mentioned in all the Vedic scriptures. For the intelligent man, controlling the senses is the most essential qualification.
It is also be controlled, and thereby family control will automatically follow. An intelligent man abuses his great qualification if he does not follow the Vedic way of life. This means he must seriously make a study of the Vedic literatures, especially of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. For learning Vedic knowledge, one must approach a person who is sent person engaged in the devotional service. He must not do things which are forbidden in the Shastras. A person cannot be a teacher if he drinks or smokes. If in the modern system education, the teacher's academic qualification is taken into consideration without evaluation of his moral life. Therefore, the result of education is misuse of high intelligence in so many ways. The Kshatriya, the member of the administrative class, is especially advised to give charity and not to accept charity in any circumstances. Modern administrators raise subscriptions for some political functions but never give charity to the citizens in any state functions. It is just the reverse in the injunctions of Shastra. The administrative class must be well versed in the Shastras but must not take to profession of teachers. The administrators should never pretend to become non-violent and thereby go to hell. When Arjuna wanted to become non-violent, coward on the battlefield of Kurukshetra, he was severely chastised by Lord Krishna. The Lord degraded Arjuna at that time to status of an uncivilized man for his avowed acceptance of the cult of non-violence. The administrative class must be personally trained in military education. Cowards should not be elevated to the presidential throne by the dint of numerical votes only. The monarchs were all cavaliers' personalities are therefore monarchy should be maintained provided the monarch is regularly trained in the occupational duties of a king. In fighting, the king or the president should never return home without being hurt by the enemy. The so-called king of today never visits the warfield. He is very much expert in artificially encouraging the fighting strength in the hope of false national prestige. As soon as the administrative class is turned into a gang of mercantile and liberal men, the whole machinery of government becomes polluted. Hare Krishna. तो यहाँ पर जो मुझे इसी अपने इतने 2 पैराग्राफ्स थे जिसके बारे में कहा गया था कि इसके ऊपर हमको चर्चा करनी, तो शुरू करने से पहले हम गुरु का आश्रय लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नमो आचार्य पादाय निताय पापदायिनि गौरकथादाय नगरग्रान्ताय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि दास्यास्ति मे कामां वरन्तां वरदर्शव कामानां हृदय संभव भवतास्तु। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे सर्वप्रथम आज सुबह जब इस जो टॉपिक है जिस विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और तो जो भागवतम मैंने खोला और जो टाइटल पड़ा इस अध्याय का, द पासिंग ऑफ भीष्मदेव, पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव। वो तो सब लोग पास हो जाते हैं, मतलब पास होना यानी डेथ, certainly you are going to get death. तो passing away of Bhishmadev, important बात वहाँ क्या है? Presence in the presence of Lord Shri Krishna. तो ये बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी ऐसी जो भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं और भक्त इतना प्रयास करते हैं कि जब भगवान के समक्ष उनकी जो है मृत्यु हो, और न खाली उनके समक्ष मृत्यु हो मगर उनका स्मरण करते हुए मृत्यु हो और भगवान के दर्शन करते हुए मृत्यु हो। तो इट इज वंडरफुल टाइटल, और हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी भी मृत्यु अगर होती है, होनी तो है 100%, मगर ऐसी होनी चाहिए कि भगवान के समक्ष हो
और भगवान के भक्तों के समक्ष हो और भगवान का दर्शन करते करते हमारे जीवा पे भगवान का नाम हो और हमारी प्राण निकले। तो आज हम इस विषय के ऊपर जो बात है करते हैं, तो यहाँ पर पहले बताया गया है कि इस जो पर्पट है, जो यहाँ पर पूरा तात्पर्य है, इस तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद ने इतनी सरलता से वर्णाश्रम का धर्म का जो है इतनी सरलता से उल्लेख किया है, इतनी सरलता से उन्होंने समझा है कि इसके ऊपर कुछ और चर्चा करने लायक कुछ है ही नहीं। मगर फिर भी जो हमने दूसरे आचार्यों की टिप्पणियां पढ़ी है या जिसके बारे में हमने जिन गुरु के द्वारा हमने सुना है, तो हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये जो है ये मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए है और आप लोगों के प्लेजर के लिए और भगवान के प्लेजर के लिए, भगवान के आनंद के लिए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें कोई भी त्रुटि होगी तो उसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए, और उसके अंदर जो भी किसी जो अच्छी बातें हैं वो हमने जो आचार्यों के द्वारा सुना है और समझा है उसको हम आपके समक्ष आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के छठा श्लोक है, जिसके अंदर यहाँ पर बताया गया है कि एताम सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठता जन्म लाभ पर पंसान अंते नारायण स्मृति। तो वहां पर क्या बताया गया है कि कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो कहते हैं कि नारायण की स्मृति होनी चाहिए, यानी भगवान श्री कृष्ण की स्मृति होनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। आप कोई भी ड्यूटी करते हो तो यहाँ पर जो ड्यूटीज बताई गई, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो उस क्लास में रहते हुए अभी जो भी कार्य करते हो, अगर आप शूद्र की कैटेगरी में भी हो तो भी आपकी जो लास्ट का स्टेज का जो आपका ध्येय क्या होना चाहिए, अंते नारायण स्मृति, यानी भगवान की जो स्मृति करते करते हमारा जो अंत होना चाहिए। और जैसे हम देखा, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि भीष्म देव ने अपनी देह को त्याग किया और भगवान के समक्ष और भगवान के भक्तों के समक्ष उन्होंने अपनी देह को त्याग किया। भगवद गीता के यहाँ पर जो एक रेफरेंस दिया गया है वो भगवद गीता का 4 अध्याय 13वां श्लोक, इस पर्पट के अंदर बताया गया है। वहां पर भगवान जो कहते हैं कि भगवान ने ये 4 डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी बनाए। तो श्लोक इस प्रकार से है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। अभी चतुर का मतलब क्या होता है? चतुर मतलब जैसे हम बोलते हैं चतुर्मास यानी 4 महीने। तो वैसे यहाँ पर ये जो चतुर है, चातुर यहाँ बोलते हैं, तो चातुर का मतलब है 4, क्योंकि चातुर्मास 4 महीने और यहाँ पर चातुर वर्ड आता है तो यानी 4। और उसके बाद में वर्णम, अभी हम लोगों ने शब्द सुना होगा गौर वर्ण, यानी जिसका वर्ण, जिसका रंग गोरा है। तो गौर वर्ण कौन है? तो जैसे हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पर गौर वर्ण से हम गौर जो वर्ण लेते हैं तो ये रंग, तो 4 यानी चतुर और वर्ण यानी गौर यानी कलर। तो डिवीजन, और उसके बाद में क्या बताया यहाँ पर वर्ण बताया गया है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के अंदर विभाजन किया हुआ है 4 प्रकार से, यानी 4 स्टेजेस के अंदर किया हुआ है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण का दूसरा रंग मतलब मैंने जो बताया है वो कलर। तो कलर यानी क्या हो गया? तो प्राइमरी कितने कलर्स होते हैं? प्राइमरी हम लोगों ने जब बचपन में स्कूल में सीखा होगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स होते हैं। तो प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसको गुजराती के अंदर कहते हैं लाल, पीड़ो ने वादड़ी, जिसका मतलब लाल यानी रेड, पीला यानी येलो, एंड वादड़ी यानी आसमानी रंग, आसमानी यानी ब्लू। तो लाल, पीड़ो ने वादड़ी मुख्य रंग के वाय, बाकी बीजा बदा मेड़वाड़ी थी थाय। यानी जो लाल, पीला और ब्लू रंग है, रेड, लाल, ब्लू यानी लाल, पीला और जो ब्लू, लाल, पीड़ो ने वादड़ी मुख्य रंग का। तो रेड, ब्लू एंड येलो, दीज 3 कलर्स दे आर द प्राइमरी कलर्स। बाकी का इन कलर्स को अगर तो मात्राओं के अंदर आप इसको मिक्स करके बनाओगे तो 81 कलर्स बनते हैं। इसमें से जो जिसके लिए बोलते हैं वो सेकेंडरी जो कलर्स है वो इन 3 कलर्स को मिक्स करके बनते हैं, तो 81 कलर्स बनते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भगवान
मतलब शिला प्रभुपाद अपने पर्पस के अंदर बताते हैं कि ये जो हमारे 3 मोड्स हैं, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, यानी कौन सा हो गया, तो सत्व रजो एंड तमोगुण, ये 3 मोड्स ये अलग अलग मात्रा के अंदर जब मिक्स होते हैं तो 84 लाख योनियां बनती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद यहाँ पर इस तरह से हमको समझाते हैं। तो इन 84 लाख योनियों के अंदर इतने सब वैरायटीज हो गई, तभी उसका विभाजन कैसे किया गया, तो उसके सतो रजो और तमोगुण, तो कोई सतोगुण में आएगा, कोई रजोगुण में आएगा, कोई तमोगुण में आएगा। तो इसका उसके बाद में क्या आता है कि हम लोगों को अपनी जो हम जो इतने सारे जन्म लिए हैं, जन्म लेने के बाद में हमारा इवोल्यूशन हो गया है, हम अभी हमको मनुष्य देह मिली है, तो हमको इस मनुष्य देह के अंदर से हमको क्या करना है, तो सिर्फ एक मनुष्य देह है जिसके अंदर हम जो ये जन्म मृत्यु 84 लाख योनियों के चक्कर से बच सकते हैं। और यही जो है, यही ज्ञान है, यही सही माने में ज्ञान है। तो भगवद गीता के अंदर बताते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इसके ऊपर आदमी लोग ध्यान नहीं देते, इसके ऊपर मनुष्य जो जीव है वो ध्यान नहीं देता, जो कि सही माने में रियल प्रॉब्लम वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बाकी तो इतने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर एक बार हमने इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकल गया तो बाकी के तो आउट हो जाएंगे। तो मेन प्रॉब्लम्स जो है हमारे उनके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए, और उसमें से कैसे निकलना चाहिए तो वो यहाँ पर बताते हैं। और आगे क्या बोलते हैं कि भगवान ने ये वर्ण बनाए, क्योंकि ये उसमें श्लोक में क्या आता है, श्लोक में आता है मया सिस्टम, मतलब मैंने बनाया। तो भगवान ने बनाया, तो हमको जब ये हमको बुद्धि आ गई कि भगवान ने बनाया, यानी भगवान ने जिस तरह से बनाएगा, भगवान की कोई चीज के अंदर खामी नहीं होती, तो हमको क्या करना है, तो भगवान ने बनाया तो हमको ये करना चाहिए कि जिस भगवान ने हमको जिस वर्ण के अंदर मतलब ढाला है, हमको उसके अंदर से सही कार्य करके भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की खुशी के लिए हमको उस तरह से कार्य करने चाहिए। तो अब ये कार्य कैसे होते हैं, तो ये इन कार्यों को शास्त्र के अंदर विधि सर बताया है, और इस पर्पट के अंदर भी काफी सारी बातें बताई। तो हमको तो यहाँ पर जो 4 मैंने बताया कि 4 वर्ण जो है डिविजन्स होते हैं, ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये कैसे होते हैं, तो जो सतो गुण के अंदर हैं, जिनके अंदर सत्व गुण प्रधान है, तो वो ब्राह्मण बनते हैं, यानी वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं। सत्व गुण और रजोगुण अगर उनका ब्लेंड है, मिक्सचर है, तो वो क्षत्रिय के अंदर आते हैं। फिर रजो और तमोगुण के अंदर वो है वैश्य के अंदर आते हैं, और लास्ट में जो है वो केवल तमोगुण में है, वो शूद्र के अंदर आते हैं। तो इस विभाजन का भगवान ने इतनी वेराइटीज जो मतलब बनाई है, तो उन वेराइटीज के अंदर उनको सबको इस जो कैटेगरी के अंदर आना चाहिए। तो जो लोग ज्यादा मतलब ज्ञानी हैं, जो लोग ज्यादा पढ़ाई करना जानते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र है, उनको ब्राह्मण कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो ब्राह्मण कैटेगरी में कैसे रखेंगे, तो ब्राह्मण का कार्य क्या होना चाहिए, उसको सिर्फ पठन पाठन करना है, उसको पहले पढ़ना है, शास्त्रों को पढ़ना है, और शास्त्रों को पढ़ने के बाद में उसका दूसरों को ज्ञान देना है, वो दूसरा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण आज के हम जमाने में देखते हैं कि ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण मतलब ज्ञानी है, इट्स नॉट जन्म के हिसाब से नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है भगवान ने क्लियरली बताया कि गुण और कर्म के हिसाब से विभाजन किया हुआ है। तो अगर ब्राह्मण कोई है, तो ब्राह्मण कौन होना चाहिए, जो बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला है, उसको बहुत इंटरेस्ट है शास्त्रों को पढ़ने का। तो ऐसी कैटेगरीज को, भले उसने किसी कुल में भी जन्म लिया हो, उसको वहां से लेके उसका जो ध्येय, उसका ध्यान पूरा किसके ऊपर होना चाहिए, जो शास्त्रिक स्टडीज के ऊपर, ताकि वो ऐसे अगर मतलब उसका इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट के हिसाब से वो कार्य करेगा, यानी वो क्या करेगा, वो शास्त्रों को पढ़ेगा। अभी ब्राह्मण को लेके आजकल के जो ट्रेंड चल रहा है, ब्राह्मण उठ के क्या कर रहा है, ब्राह्मण उठ के जो है इंजीनियरिंग कर रहा है या डॉक्टरी कर रहा है, मगर वो अपनी जो बुद्धि भगवान ने उसको तीव्र बुद्धि दी है, वो सही मार्ग में नहीं लगा रहा है। इसकी वजह से संसार के अंदर ये जो बहुत सारे जो तकलीफें हैं, तो ये कारण है। उसके बाद में क्षत्रिय हम जानते हैं, क्षत्रिय कैसे होते हैं, क्षत्रिय का हमेशा कैसे होता है कि वो हमेशा किसी की भी रक्षा करते हैं। तो इसके ऊपर उदाहरण इसमें गौर गोपाल प्रभु ने अपने लेक्चर्स में दिया था कि एक क्लास है, मतलब बच्चा स्कूल में जाता है, तो उसके अंदर कोई बच्चा जो है बहुत ही होशियार है पढ़ाई के अंदर, कोई बच्चा जो ऐसा है कि अगर उसके क्लास के बच्चों को कोई भी अगर दूसरे क्लास के या दूसरे डिवीजन के बच्चे आके कुछ बुली करेंगे या उसको आके परेशान करेंगे, तो ये जो लड़का रहेगा
वो क्या करेगा, वो बोलेगा मेरे क्लास के बच्चों किसी को परेशान मत करो, मैं तुमको मार दूंगा या मैं तुमसे झगड़ा करूं। तो वो उसका स्वभाव क्या हो गया, उसका स्वभाव क्षत्रिय होगा। वो यानी वो अपने टीम को हमेशा बचाने का प्रयास करेगा, उसके लिए हमेशा तत्पर रहेगा झगड़ा करने के लिए। तो वो उसका स्वभाव कैसा है, तो क्षत्रिय का स्वभाव है। तो ये एक उदाहरण है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र ये कैसे मतलब विभाजन किया हुआ। तो वो उनकी क्वालिटीज के हिसाब से। तो इससे फायदा क्या होता है, मतलब अभी प्रश्न ये आता है कि वर्णाश्रम किसके लिए पहले बताया गया है और क्यों बताया गया। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद ने तात्पर्य के अंदर बताया कि वर्णाश्रम इज प्रिस्क्राइब सिविलाइज्ड ह्यूमन, यानी जो सभ्य मनुष्य है उसके लिए ये बनाया गया है। और उसको क्यों ऐसा बनाया गया, तो ये इसलिए ताकि वो अपना जब जीवन समाप्त करता है तो जीवन समाप्त करने का जो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवान को जानकर और भगवान के धाम में उसको जाना है, ये जानकर वो इस तरह से वो प्रगति कर सके। तो जो ब्राह्मण रहेगा वो उस हिसाब से जो प्रगति करेगा, जो क्षत्रिय होगा उसको ब्राह्मण ज्ञान देगा कि तुम्हारे ये कार्य है, तुमको ऐसे कार्य करने हैं और तुम ऐसे करके अपना जीवन को सुधार सकते हो। तो ये जिस कैटेगरी में जो भी है उसके लिए उसका एंड क्या है, अंते नारायण स्मृति, उसको भगवान का नाम मतलब याद होना चाहिए या उसको याद आना चाहिए और भगवान की स्मृति में उसका जो है देह त्यागनी चाहिए। उसके बाद में आता है यहाँ पर जो है भीष्मदेव बताते हैं और जो प्रभुपाद ने परपट के अंदर बताया है कि 9 कमांडमेंट्स एक सभ्य मनुष्य बनने के लिए, यानी इसने यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि कैसे मतलब होता है कि सभ्य मनुष्य होगा वो ये बेसिक है, यानी मिनिमम क्वालिटीज ये तो होनी चाहिए एक मनुष्य होने के लिए, सिविलाइज्ड ह्यूमन होने के लिए ये 9 क्वालिटीज तो होनी चाहिए। और इसके अंदर से मैं तो समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 9 की 9 क्वालिटीज हम लोग देखते हैं आजकल के अंदर लोगों में नहीं है। तो हम लोग सिविलाइज्ड, हम अपने आप को सिविलाइज्ड बताते हैं मगर हम लोग एक्चुअली सिविलाइज्ड नहीं है। तो शास्त्र यहाँ बताते हैं कि हमको 9 की क्वालिटीज होनी चाहिए हमको सिविलाइज्ड होने के लिए, सभ्य होने के लिए। उसके बाद में आगे आता है कि वर्णाश्रम से हमको क्या मिलता है, उसका फायदा क्या है। तो यहाँ पर जो बोलते हैं कि क्योंकि जो कार्य आपको वर्णाश्रम के द्वारा जो आपको दिए गए हैं उसके अंदर आपके स्वभाव के हिसाब से और आपकी पसंद के हिसाब से आपको कार्य दिए जाएंगे। आपको जो कार्य करने के लिए कहा गया जाएगा वो आपकी जो इच्छा है और आपके स्वभाव और आपको वो पसंद है, इसके लिए वो आपको कार्य दिए जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आदमी अगर नापसंद वाला कार्य करता है, जैसे कि मानो अगर जो एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय को उसका क्या कार्य क्या है कि उसका स्वभाव क्या है, प्रोटेक्शन करना। अगर उसको तुमने बिठा दिया, उसको किसके ऊपर, किस चीज के ऊपर बिठा दिया, उसको अगर आपने बोला कि उसको ये बना दिया, एक टीचर बना दिया, तो वो क्या करेगा, वो तो हर टाइम जो है कोई चीज के ऊपर भी उसका स्वभाव कैसा है, झगड़ा करने का, तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएगा। और ब्राह्मण को आपने बिठा दिया किस लिए, उसको आपने इसको वॉरियर बना दिया, तो क्या होगा, वॉरियर बना दिया तो ब्राह्मण क्या का, ब्राह्मण का वो स्वभाव नहीं है। ब्राह्मण का स्वभाव क्या है, वो ज्ञान बटोरना और ज्ञान बांटना, तो वो वहां पर सही माने में नहीं होगा। मगर जब आपका इंक्लिनेशन, यानी जब आप किसी चीज की तरफ से झुके रहोगे और कार्य करोगे, तो उसमें क्या होगा कि आपकी रुचि बढ़ेगी, और रुचि बढ़ेगी तो आप भगवान की, और जिस तरह से मैंने पहले बताया कि उसके अंदर इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि हर जो वर्ण के अंदर लोग हैं, जो हर डिवीजन के अंदर लोग हैं, वो सब भगवान को अब उस क्वालिटीज को फॉलो करते करते भगवान के अपने मतलब आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बताया। और उसके बाद में बोला कि सिंस और यहाँ पर ये भी बताया कि हमारे जो मोड ऑफ मटेरियल नेचर्स हैं, जो सतो रजो तमो गुण है, इसके अंदर हमको एक इच्छा होती है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन की, तो वो भी बताया गया है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन आप किस तरह से कर सकते हो, मगर इट हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड, आपको मतलब रेस्ट्रिक्शन में कार्य करना चाहिए। तो अभी हाउ शुड ब्राह्मण एक्वायर नॉलेज, ब्राह्मण को कैसे मतलब नॉलेज एक्वायर करेगा, तो वहां पर जो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के अंदर, जो उस दिन अपने जीव पावन प्रभु ने मतलब इंस्ट्रक्शंस में बताया था, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का पहला अध्याय का 4था श्लोक, जिसमें आता है निवृत्त तृष्णै उपगीयमानात् भव औषधो शोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजते बिना पशुनाम। तो इसके अंदर बताते हैं कि जो ये आप निवृत्त तृष्णै, आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा, तो ब्राह्मण को ज्ञान उस व्यक्ति से लेना चाहिए जो अपनी तृष्णा से निवृत्त हो चुका है,
यानी जिसने अपनी जो उसके संसार के जो उसकी इच्छाएं हैं वो उससे निवृत्त हो चुका है। तो निवृत्त तृषई उपगीयमाना, तो ऐसे व्यक्ति से ब्राह्मण को ज्ञान लेना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? जो आचार्य होते हैं, जिन्होंने सब त्याग चुके हैं, उन संसार से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों के पास से अगर हम जाएंगे और उनसे हम लोग ज्ञान बटोरेंगे तो वो, क्योंकि वो उनकी तृष्णा रहित हैं, उनके अंदर कोई भी इच्छाएं नहीं है, तो वो आपको बता सकते हैं कि किस तरह इच्छा रहित हो सकते हो और वो आपको सही माने में ज्ञान देंगे एज पर द शास्त्र, एज पर द परंपरा। तो निवृत्त तृष्णई, जो अपनी तृष्णाओं से निवृत्त हो चुके हैं, ऐसे लोगों से ज्ञान लेना चाहिए। तो इसका क्या बेनिफिट होता है? तो निवृत्त तृष्णई उपगीयमाना भव औषधो श्रोत मनोभिरामा, तो वो आपको क्या बताएंगे कि इस भव सागर के अंदर से बाहर निकलने की दवाई बताएंगे। भव औषध यानी ये जो बीमारी है, भव यानी भव सागर, इसके अंदर हम जो सतो रजो तमो गुण के अंदर से हम लोग और जो प्रॉब्लम्स में आते हैं, वो हमारे जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सभी से निवृत्त होने के लिए आपको वो दवाई बताएंगे। तो वो दवाई क्या है? वो दवाई क्या है? तो वो दवाई ये है कि उत्तम श्लोक गुणानुवादा, जितने भी श्लोक हैं, जो शास्त्रों के अंदर उत्तम उत्तम श्लोक हैं, उनके बारे में वो हमेशा चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। तो जब आप ये जो श्लोक उनके द्वारा, उनके एक्सप्लेनेशन के द्वारा, किनके एक्सप्लेनेशन के द्वारा? जिनकी तृष्णा से निवृत्त हो चुके हैं, ऐसे लोग जब आपको इन श्लोकों के बारे में बताएंगे। और कैसे ये जो दवाई है भव औषध, यानी भव सागर से निकलने के लिए जो औषध है, ये औषधि कैसे है? तो ये औषधि ऐसी है जो आपको मतलब इस भव सागर से निकालेगी। तो ये औषध कैसे लेनी है? तो ये इस श्लोक के अंदर बताया है कि निवृत्त तृष्णई उपगीयमाना भव औषध श्रोत मनोभिर का उत्तम श्लोक गुणानुवादा तुमान विरजते बिना पशुनाथ। तो यहाँ पर क्या होता है? भव औषध श्रोत मनोभिरामा, यानी जो श्लोक हैं उनको आपको कैसे लेना है? श्रोत, श्रवण करके। तो वो आपको श्रवण जो करवाएंगे, वो आपको इस जो बातों को इतना अच्छी तरह से जो भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान के रूप के बारे में वो जब आपको समझाएंगे तो क्या होगा? तो आपके अंदर जो भी कल्मश हैं, जितने भी आपके अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, ये सब ये निकल जाएंगे। और ये दवाई कैसे लेनी है? तो ये दवाई श्रोत मनोभिरामा, आपको श्रोत यानी आपको श्रवण करना है। और ये दवाई कैसी है? दवाई क्या कड़वी है, मीठी है, फीकी है, कैसी है? तो यहाँ पर बताते हैं कि ये जो दवाई है ये श्रोत मनोभिरामा, ये आपके मन को आनंद देगी, ये ऐसी दवाई है। तो ऐसी दवाई अगर हम लेंगे तो मन के अंदर जितने भी कल्मश हैं वो निकल जाएंगे। तो हमको ऐसे मतलब ब्राह्मण जो है ऐसे ज्ञान इससे ले सकते हैं। तो इसके बाद में आता है कि जो अपना क्षत्रियों के बारे में बताया है, तो क्षत्रियों के अंदर बताया है कि क्षत्रियों को कैसा होना चाहिए। तो वो कभी भी नॉन वायलेंस नहीं करेगा, वो तो सीधा बोलेगा कि नहीं, जो गलत है उसके हिसाब से वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर जैसे अर्जुन था, अर्जुन का उदाहरण दिया है कि अर्जुन अगर कुरुक्षेत्र के अंदर होता और उसने क्या किया था, उसने पहले बता दिया कि मैं अभी ये कार्य नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो अगर लड़ाई नहीं करेगा तो मतलब भगवान उसको चेस्टाइज करते हैं, भगवान उसको मतलब एक तरह से उसको सही मार्ग दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई नहीं, तुम्हारा कार्य ये है तो तुमको ये कार्य करना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर बताया है अपने क्षत्रियों के बारे में। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि क्या जो अगर शूद्र के घर में जन्म लिया है या वैश्य के घर में जन्म लिया है या तो उसने जो है अपने क्षत्रिय के घर में जन्म लिया, तो क्या वो ब्राह्मण की क्वालिटीज वाला हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसे बनाया है। तो अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं या जिसके अंदर भी वो क्वालिटीज हैं, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की, तो वो उस मार्ग को ले सकता है, उस मतलब जो है डिवीजन के अंदर जाकर वो कार्य कर सकता है। तो ये इसको समझाने के लिए एक उदाहरण बताते हैं कि जो ब्राह्मणिकल कल्चर है वो कैसे आएगा। तो फिर ब्राह्मणिकल कल्चर आपके अंदर आ सकता है। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि इट इज जस्ट लाइक सनशाइन, सूर्य की जैसी किरण होती है, सूर्य की जो किरणें होती है वो सबके लिए होती है। तो इसी तरह जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है वो अगर किसके अंदर है तो वो उस कैटेगरी में जा सकता है और वो कार्य कर सकता है। तो जो यहाँ पर क्लैरिटी दी है वो जन्म से
मतलब है विभाजन नहीं किया हुआ है, गुण कर्म विभाजन। तो इसी के साथ में मैं, समय भी हो गया 5-10 मिनट ऊपर हो गए, तो मैं यहीं पे क्लास को जो है विराम दूंगा। और आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपकी कोई पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली आपकी पॉइंट्स होंगी तो आप इसमें ऐड कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा उद्धव प्रभु, आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। या प्रभु जी। यस या प्रभु। थैंक यू। उद्धव प्रभु, आपने इतना अच्छा परफेक्ट एक्सप्लेन किया है सारा जो 4 वर्ण, और ये तो कुछ मतलब कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं। सो वेरी नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Namaste. It नमस्कार। is explained that head is a part of Brahman, hands are the part of Kshatriya, and the abdomen part is Vaishya, and our leg part is Shudra. So we need someone to do the farming work, and we need someone to do the japa for the whole world. It is not for one person. That is a Brahman. And for all the other protecting activities, you need Kshatriya. And for our Kana, everything, a Vaishya. So all the 4 are mingled, but only the percentage differs in each. So when Yes, the Mata. percentage of Shudra is more, there will be a farmer and do some helping to others and all. Then and someone to administer in every place. He will be a Kshatriya. Thank you, Mataji. Thank you very much. Very rightly said, very nicely explained. Thank you. Thank you for sharing your points, Mataji. Hare Krishna. Yes, Satyaraj Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास, बहुत अच्छा क्लास। और जैसे आपने बताया कि प्राइमरी 3 कलर्स रेड, ब्लू, येलो, फिर आपने उसको कोरिलेट किया 3 गुणों के साथ। तो प्रभु जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं खाली एक ही पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ इसमें प्रभु जी कि हम लोग को ये पता है कि क्रिएशन, कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, तो जो तमोगुण है वो लॉर्ड शिव जी है, उनके अंडर रहता है। देन रजोगुण है वो विष्णु जी, और सत्वगुण है वो ब्रह्मा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you for adding these points. Hare Krishna. हरे कृष्णा। जस्ट जैसा भी नंदिनी माता जी वो बोल रही थी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, तो one point struck me. I thought I will share. Actually, in Kali Yuga now, people are thinking that Shudra means a low class people. So it is not like that. Like Mataji explained, yes, पूरा body में head is required, सर चाहिए, हाथ चाहिए, पेट चाहिए, पाँव चाहिए. Even if one part is missing, the body cannot work. If head is missing, he cannot think. If legs are missing, he cannot walk. So it is not, ऐसा नहीं है कि अरे छी शूद्र है, नीच जाति का है. ये एक distorted version है वर्णाश्रम का, which was not there in earlier part, but in कलयुग ये जो था एक so called जो ब्राह्मण थे, उन्होंने इसको डिस्टॉर्ट करके खाली जो था शूद्रों को लो क्लास बताया. एंड बिकॉज ऑफ देयर मेंटेलिटी ये जो एक टसल जो है वो शूद्रों और ब्राह्मणों के बीच में वो क्रिएट हो गया नेसेसरी. तो इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि ब्रह्म खुद भगवान कृष्ण ने ये बनाया है. भगवान 4th चैप्टर में बोलते भी चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभागशः.
तो अगर कुछ भगवान ने बनाया तो इसमें त्रुटि हो नहीं सकता, बट जस्ट कलयुग का है, एक परवर्टेड वर्जन है ये. तो वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट शूद्रा मीन्स समथिंग लो क्लास. एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड इन दैट सोसाइटी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू फॉर एडिंग दिस पॉइंट, वेरी नाइसली एडेड. तो एक्चुअली जो मैं जो लेक्चर्स पढ़ भी रहा था और ट्रांसक्राइब जो किए हुए लेक्चर्स पढ़ रहा था और सुन भी रहा था, तो उसके अंदर ये बात आई, बिकॉज वी हैड अ वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम, सो आई कुडंट एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स व्हाट एवर आर देयर. तो उसके अंदर वो बताते हैं कि जैसे ये सतो रजो तमोगुण सबके अंदर हैं. सतो रजो तमोगुण हर जीव के अंदर, मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसके अंदर हैं. ये कैसे होता है? जब हम लोग सांबार बनाते हैं, सांबार के अंदर उन्होंने सब जो है वेजिटेबल्स डाले हुए हैं. कौन से है? जैसे बैंगन है, सिंगी है, सींग है, उसके बाद में हम लोगों ने आलू डाला है, उसके बाद में जो भी वेजिटेबल्स हमने डाले हैं, भिंडी डाली है. तो होता क्या है, जब वो सांबार उबलती है तो क्या होता है कि कभी ऊपर भिंडी आएगी, कभी ऊपर सींग आएगी, कभी ऊपर आलू आएगा, कभी बैंगन आएगा. तो ऐसे वो घूमते रहता है. तो यही जो सतो रजो तमो गुण हमारे सबके अंदर है, उनकी मात्रा है, वो कैसे कभी कौन सा ऊपर आता है, कभी कौन सा नीचे जाता है. तो ये हमेशा जो है बेस्ड ऑन दीज थ्री गुणास ओनली वी आर टेकिंग द डिसीजंस. सतो अगर जो रजोगुण ज्यादा आ गया तो हम वो रजोगुण वाली एक्टिविटीज को लेंगे. तो इसमें वो नहीं है कि, तो ये सब जो क्वालिटीज हैं सतो रजो तमो गुण, ये सबके अंदर है. ओनली थिंग इज दैट कि कौन सा उस समय पर, उस दैट पर्टिकुलर मोमेंट इट बिकम्स प्रीडोमिनेंट, वो कौन डोमिनेट करता है. तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज देयर. हाँ, जो दूसरा आपने बताया है कि चातुर्वर्णम, तो हमने वो भी देख लिया कि चतुर यानी 4 डिविजन्स, एंड वर्णम, वर्णम मींस कलर्स. कलर्स के बाद की बताया हमने जैसे एक्सप्लेन किया. तो द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन दीज 3 थिंग्स, सतो रजो एंड तमो गुण. मगर वो क्या होता है कि किसके अंदर सतो गुण ज्यादा है, किसके अंदर तमो गुण ज्यादा है. तो उसके लिए उसका विभाजन बाद में क्या कि इसको ब्राह्मण में रखो, इसको क्षत्रिय में रखो, इसको वैश्य को रखो, इसमें शूद्र में रखो, उसको उसके हिसाब से डिवीजन करना चाहिए. एंड दिस डिवीजन हैज टू बी डन बाय द इंडिविजुअल्स देमसेल्व्स. और दूसरा जो आपने बताया कि शरीर के अंग हैं, तो उसके अंदर एक लेक्चर का जो है ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था, उसमें बोलते हैं अगर एक हाथ नहीं होगा चलेगा, एक पैर नहीं होगा चल जाएगा, आदमी जी सकता है. मगर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज वाले जो ब्राह्मणिकल जो वर्ग है वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि विदाउट हेड, अगर सर नहीं है तो बाकी कोई शरीर जो है उसके अंदर ब्रेन नहीं है तो आदमी कैसे काम करेगा. तो ये हेड होना जरूरी है. और हेड भी फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका दिमाग दूषित है, नहीं. It has to be a proper set of mind which will help all of them. Head अगर काम करेगा, head तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको अच्छी ऊर्जा नहीं मिलेगी. यानी he has to have good food. और good food कौन उसको देगा? तो उसको वैश्य देगा, और वो पेट के अंदर जाएगा तब उसको शक्ति मिलेगी. तो इस तरह से बताया गया कि सबको आपस में जो एक कोऑपरेट करके कार्य करना है. शरीर ऐसे नहीं चलेगा. मगर जो बोलते सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है वहां पर ब्राह्मणिकल. तो ब्राह्मणिकल जो होगा वो आपको सही मार्ग दिखाएगा बाकी की जो 3 हिस्से हैं उनको चलाने के लिए. तो दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन. सो इट डजंट डिपेंड ऑन द जन्म, इट डिपेंड्स ऑन द गुण एंड कर्म. हरे कृष्णा. सर्वदेव प्रभु, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम. या प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल क्लास प्रभु. प्रभु जी, हम लोग जैसे कि आश्रम जो है वो डिफाइन करते हैं कि ना, यस वी आर, मतलब हमें पता रहता है कि वी आर इन जैसे कि गृहस्थ में है या वी आर इन ब्रह्मचारी में. बट फॉर दी वर्ण, मतलब जब हम भक्ति में रहते हैं तो इट्स, मतलब वर्ण से हम जो भक्त है वर्ण लोग से ऊपर है क्या प्रभु? जैसे कि क्षत्रिय, बिकॉज हमने वो हम हाउ वी विल, हमें कैसा पता चले कि वी आर इन विच वर्ण में है? लाइक हम क्षत्रिय है क्या, हम शूद्र है, या इज सेइंग दैट कि इन हियर जब जो कलयुग में है प्रभु, मतलब वो सबसे ऊपर है क्या प्रभु? प्रभु गुणा सबके अंदर है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, गोपी मनोहर प्रभु एंड सूरज माधव. गुणा जो है सबके अंदर है. और हमारे अंदर गुण जब भी हम एक डिवोटी बनने का प्रयास करते हैं तो उसके अंदर भी कोई डिवोटी को जो है भगवान की सेवा करने का आनंद आता है, किसी को जो है
जो साफ सफाई करने का उसमें आनंद आता है, किसी को जो है भगवान के बारे में बात करने का। हर कोई जो है अच्छा वक्ता नहीं बनता, हर कोई जो है अच्छा जो लेक्चर्स नहीं दे सकता, यानी वो बोलते हैं, क्लियरली बोलते हैं। तो आई वुडंट नेम सम ऑफ द डिवोटीज हियर, वो बोलते नहीं प्रभु ये लेक्चर मैं नहीं दे सकता, आप मेरे को दूसरा डीटी वर्शिप दो, डीटी वर्शिप वो कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं करेंगे, वो करेंगे, जब भी आएगा तो वो करेंगे, बट उनका वहां पर भी स्वभाव ही काम आता है कि कोई जो है देखिए तो कितना अच्छा से कीर्तन करते हैं, कोई देखो तो कितना अच्छे से जो है लेक्चर्स देते हैं, कोई देखो तो कितने से अच्छे से जो भगवान की सेवा करते हैं, उनके प्रसादम बनाते हैं, कोई देखो तो कितने अच्छे से जो भगवान की जितने भी अर्चा विग्रह हैं उनकी वहां पर साफ सफाई करते हैं, भगवान के जितने भी जिन बर्तनों के अंदर या जिन यूटेंसिल्स के अंदर खाना बनता है उसको सफाई करने का कार्य। तो वैसे सफाई करने का कार्य किसका है? तो ये हम लोगों ने बना के रखा है, ये शूद्र का है, मगर कहने का मतलब स्वभाव है, तो नेचर है। तो इसके अंदर भी हम देख सकते हैं, इट्स नॉट दैट कि हम इनसे ऊपर हैं, यानी इन चारों जो विभाजन से ऊपर है, नहीं। बहुत सारे ऐसे डिवोटीज भी हैं जो लेक्चर्स उनको बहुत अच्छा लगता है कि किसी को लेक्चर्स जो पढ़े वो इमीडिएटली किसी के साथ में शेयर करें। तो ये एक वो उनका गुण है, तो वो एक ब्राह्मणिकल गुण है। तो इससे हमको अपने आप को समझना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड प्रभु। Gopi Manor Prabhu, if you want to add on this question, you can please highlight it. या नहीं प्रभु, सही कहा आपने कि भक्त में ऐसा नहीं है कि वो भक्त बन गया है, चैंटिंग कर रहा है, 16 माला कर रहा है, तो ये गुण के परे हो गया। गुण उसमें भी रहेगा, कोई रजोगुणी होगा, कोई तमोगुणी होगा, कोई सत्वगुणी होगा, और उसके हिसाब से फिर वो एक्ट करेगा। कोई ब्राह्मण होगा, कोई वैश्य होगा, कोई शूद्र होगा। तो वैसे ही टेम्पल जो है उसमें भी फिर विभाजन होता है ना, किसी को मैनेजर का रोल दिया जाता है क्योंकि ही इज वेरी गुड मैनेजर, ही इज इंटेलिजेंट। ऐसा कुछ है वो नहीं कर सकता इंटेलिजेंट काम, तो भाई ठीक है चलो तुम साफ सफाई करो, मंदिर साफ करो, ये करो वो करो। कुछ है बहुत अच्छे एकदम सोच रखते हैं, तो उनको फिर डेटी वर्शिप, भगवान का सेवा, किचन का सेवा, ये सब दिया जाता है। तो इट डिपेंड्स। तो अपना जो इवन टेम्पल मैनेजमेंट है ये इसी में डिवाइड होता है, ये तो इट इज देयर इन एवरीबॉडी। हरे कृष्ण। थैंक यू ब्रो। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। बहुत अच्छे से अपना and some are by their gunadisya. So in both the things we have to take the best. And varnashrama, sannyasis, vanaprasthas, grahasthas and brahmacharis, this is also comes under varnashrama. Yeah, correct. Yeah, but one thing I would like to add is some are by birth, but if they doesn't have that quality, अगर वो गुण उनमें नहीं है, like some maybe by birth he may be Shudra, लेकिन he is very intelligent, so we cannot consider him as Shudra because he is having quality of Brahmana. He will fall into the quality of a Brahmana. Similarly, if he is somebody a Brahmana by birth, but he doesn't have that quality, he is working or he is serving, he is like to serve others, he is not giving knowledge, so he will be considered Shudra. So that's why Bhagavan Krishna is saying in 4th chapter, guna karma vibhagasha, according to his guna and karma. He doesn't say janma karma vibhagasha, he says guna karma. So that guna is very important in playing the role to classify this 4 varna and ashramas. Hare Krishna. We have so many stories in Bhakta Vijaya, like a barber also. Vishnu has come in the form of a barber. Everything he has done. Like in Raikwa, he was a what is that, cobbler. So in all forms, God has come. Hare Krishna Mataji, that's correct. So basically, the idea is to make the people realize none of the works they are degraded or unwanted. All the works are there, and all the works according to the guna and karma, they should be taken in that spirit. Now here what exactly has happened, see what Gopi Manor Prabhu just mentioned is that if a person is born in the family of a doctor, there are very many chances
if a child is born in the family of a doctor, there are very many chances, because right from the childhood he'll see this mother and his father always talking about dissection, or talking about operations, this, that, and he has been hearing that. So there are very many chances that he can become a doctor. Not necessary, but that's not necessary that he will surely become a doctor. No. If probably he is liking accounts, so he will go into the financing department. So that's different. So similarly, if a person is born in a Brahminical family, there are very many chances of he's at an advantageous stage that he can become a Brahmana. But then too, the major factor which is identifying him or his qualities is his guna and karma. So basically, all his previous karmas and what his gunas are, what is his nature is. So swabhav, that swabhav is very important. So whatever swabhav a person gets, and these swabhavs and they are basically dependent upon our previous births. Whatever impressions we are having from the previous births, we are bringing it here. जो हमारे पिछले जो जन्म है, जितने एक जन्म नहीं, पिछले अनेकों जन्मों के जो हमारे ऊपर छाप हैं, वो स्वभाव हमने वहां से एकत्रित किया हुआ है. तो इस जन्म के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, इस जन्म के अंदर हमने आगे वाले जन्म का जो स्वभाव हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. अभी हम जो जिस स्वभाव को हम अपनाएंगे और जिस स्वभाव के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो हमारे आगे जन्म के अंदर वो काम आएगा, या वो हमारे जो है हमारा शरीर उस प्रकार से तैयार हो रहा है. हम लोग यहाँ से मर रहे हैं, यानी हम अपने बूढ़े हो रहे हैं और मर रहे हैं. Okay, at the same time there is another body which has been formed according to whatever swabhav we are imbibing, whatever swabhav we are following. So to change that swabhav, nature is natural, you know, the nature of a person is natural. So उसको change करने का एक ही तरीका है कि भगवान के हमेशा, और इस वजह से इस तात्पर्य में भी बताया गया कि जो भगवान मतलब what is the purpose of having this विभाजन, what is the purpose of having this the division is to, according to the category, according to the in the division, the God has defined the qualities, God has defined the duties, and the person in that, वो जो section के अंदर आता है, वो कार्य करेगा तो उसका स्वभाव चेंज होके एंड अंते नारायण स्मृति, यानी उसका स्मृति अगर वो शूद्र उसके अंदर भी, वर्ण के अंदर भी है, तो भी वो अगर उसकी स्मृति किसमें नारायण मिलेगी तो उसका भी उद्धार होगा, ब्राह्मण का भी उद्धार होगा. अगर वो उनके जैसे डिस्टिंग्विश किया गया, जैसे उनको डिफाइन किया गया शास्त्रों के हिसाब से, तो वो उनका ऐसे मतलब जो है उनकी प्रगति होगी. ऐसा नहीं है कि शूद्र के स्वभाव वाला प्रगति नहीं कर सकता है. He also can get the liberation. He also can do the service of the Lord. This is what exactly is wanted to mention. Hare Krishna. Surat Madhav Prabhu, if you want to add anything. Thank you, Udapesh Prabhu. Very nicely explained by the example of son of a doctor. Practical example. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much. I think समीर प्रभु को कुछ बोलना है. प्रभु समीर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू. प्रभु जी, एक सवाल था, ये वर्ण संकर का हम लोग जब बात करते हैं तो वर्ण संकर इज बिकॉज ऑफ टू वर्ण, ये जो विच इज नॉट एडवाइजेबल, मतलब वो खराब है. लेकिन जब हम लोग बोलते हैं कि कोई शूद्र है जो खुद को अपलिफ्ट कर रहा है ब्राह्मण लेवल पे कर्म के थ्रू, तो ये वर्ण संकर का नहीं कहा जा सकता है क्या? और या कोई ब्राह्मण है जिसका जन्म ब्राह्मण में हो गया लेकिन उसमें कोई क्वालिटीज ब्राह्मण की नहीं है और वो शूद्र के लेवल जैसा काम कर रहा है और कर्म से, तो वो शूद्र कहलाएगा. तो ये भी वर्ण संकर के वजह से होता है क्या? ये मुझे पूछना था. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु यहाँ पर जो वर्ण शंकर का जो बता रहे थे, मतलब जो इसमें आता है, भगवद गीता के अंदर आता है कि अगर जो लोग यानी युद्ध के अंदर मारे जाएंगे तो उनकी पत्नियां जो है फिर वो हो जाएगी, दे विल बी विडोड. सो दे व्हाट विल हैपन, दे विल मिंगल विद द पीपल ऑफ अनदर. तो अगर जब युद्ध होगा, युद्ध के अंदर जो औरतें विडो हो गई हैं, वो किसकी पत्नियां हैं? वो पत्नियां हैं एक क्षत्रिय की पत्नियां हैं. मगर वो क्षत्रिय की पत्नियां, अगर सब क्षत्रिय मर जाएंगे या उनका विनाश हो जाएगा, तो वो किसके साथ में जो है रिलेशंस बनाएंगी?
वो उस ये व्यक्ति से रिलेशंस बनाएंगी जो मतलब या तो कौन सी कैटेगरी के अंदर है, जैसे मतलब या तो शूद्र की कैटेगरी में है, या तो वैश्य की कैटेगरी में है, वो क्षत्रिय की कैटेगरी में नहीं है। तो जो वैश्य है या शूद्र है या ब्राह्मण है, इन कैटेगरी के साथ में वो मिंगल करेंगी। तो इसके लिए वहां पर जो बताया गया कि अगर एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण एक ब्राह्मण से मतलब जो है संबंध बना सकता है या मैरिज कर सकता है। व्हाई? बिकॉज उसका जो दोनों ब्राह्मण हैं, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ द जन्म, एज एक्सप्लेन कि जन्म एक एडवांटेजेस है, ऐसा नहीं कि जन्म एडवांटेजेस नहीं है, जन्म एडवांटेजेस है, मगर वो जन्म अगर उसका जो ज्ञान है उसका अगर दोनों अगर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज वाले हैं अगर करेंगे तो उसके अंदर मेरे हिसाब से वर्ण शंकर नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। गोपी मनोहर प्रभु, इफ यू कैन ऐड ऑन द सेम टॉपिक। या हरे कृष्ण प्रभु। पहले तो वर्ण संकर आपने बहुत अच्छा समझा। तो ऐसा नहीं है कि दो वर्ण का मिक्सिंग से वर्ण संकर होता है। इफ यू सी अपने जो व्यासदेव हैं, he was the son of a brahmana and satyavati and she was kshatriya. So it doesn't mean that he is varna sankar. Varna sankar means जो illegitimate है, which is not correct, उससे जो या जो मतलब जो है was not qualified and he is having like na who is mating with another woman, that becomes an varna sankara. तो वो है। एंड और ऑल्सो यू कैन सी लाइक इफ अ लेडी इज क्षत्रिय एंड द पर्सन इज लेसर कास्ट, मे बी शूद्र और समबडी, देन इट बिकम्स अ वर्ण संकरा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे दो मतलब वर्णों का तो मिलन होता है। जैसे इवन घटोत्कच वाज सन ऑफ क्षत्रिय एंड राक्षसी। सो अ हायर कास्ट man can marry a lady caste below, but not other way. मतलब अगर कोई अगर ब्राह्मण है तो he can marry a kshatriya lady, but if somebody is a kshatriya he cannot marry a brahmana, then that is wrong. But then this we are talking on the base of janma, not on the base of his varna, right? Janma and karma also. Main is guna. जैसे अगर हम लोग देखें राक्षसी, if she is a rakshasi, मतलब जैसे राक्षसी थी and he was a kshatriya, so then it was basically rakshasi because she was born in the kul of rakshasi, not necessary that she was a rakshasi by जिसको बोलते हैं कि by her gunas. Yes. So main is guna, so that we have to take care. So then that varna sankara comes into picture. I hope you got Samir Prabhuji. Can I just add some point on this? I will just this is what I heard from my father, you know, when I used to discuss with him. तो वो उदाहरण देते थे कि राजपूत लोग जो राजस्थान और यहाँ पर हैं, मेवाड़ के और इधर के जो राजपूत लोग होते थे, तो वो जब युद्ध करने जाते थे तो उन्होंने युद्ध किया तो उनकी जो पीछे पत्नियां थी, मतलब देयर वाइफ्स हुए थे, वो तो यूजुअली या तो जौहर करके मतलब अपने आप को समाप्त कर देती थी। अभी उनके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर वो जौहर नहीं करती थी। तो अगर वो एक मतलब राजपूत उसका मतलब राजपूत खानदान से है और राजपूत उसका जो नेचर है वो क्षत्रिय नेचर है औरत का, एंड शी मैरिज, जब भी उनके पति का मतलब युद्ध के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, वो वीर गति हो गई, उनको मतलब जो है ही डाइड। सो नाउ दैट लेडी शी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को, मतलब एक बच्चा था या दो बच्चे थे, उसको उठा के वो लोग वहां से भाग गए। किसके साथ में भागे? यानी वहां पर जो वहां पर महल में काम करते थे, यानी कौन है, धोबी है, जो उसके बाद में चमार है, उसके बाद में ये जो काम करते थे, मिनिमल जॉब्स जो करते थे, उनके साथ में वो भाग गए।
तो अभी उनकी फिर उनके साथ में उन्होंने मतलब जो है संबंध बनाए, तो उनकी जो उसके जो नेक्स्ट जो जनरेशन आई, तो वो जो बच्चे हैं वो अपना नाम, उन औरतों ने अपना नाम वही रखा कि नाम है चौहान। तो चौहान यानी एकदम दे आर राजपूत, चौहान नाम रखा। मगर वहां पर क्या हो गया कि क्योंकि उसका जो औरत का नेचर है, शी राजपूतानी है, और जो दूसरा जो काम कर रहा है या धोबी है या कोई कॉबलर है या कोई भी है लोहार है, उनके साथ में उन्होंने शादी की, तो वहां पर क्या हो जाता था कि और द लेडीज वर मोर डोमिनेंट nature wise because they are Chhatrani, so they were more dominant on the people, you know, on the husbands. So this is what the impact happens. तो मतलब ठीक है, क्योंकि वो नेचर से छत्रानी है और जो दूसरे हैं वो नेचर से जो है इधर दे वैश्य और दे शूद्रस, तो दैट यूज्ड टू कम। तो अभी जो उनकी बच्चे पैदा हो गए, उन बच्चों के अंदर अगर माँ के गुण हैं और माँ ने उनको इस तरह से पाला है, तो वो अभी भी वो बच्चे जो हैं वो इधर देयर नेचर बिकम्स like you know they are kshatriyas or they become vaishyas or sudras by nature. So this I wanted to add. Hare Krishna.